The National Green Tribunal has ordered that cruise and other motor-propelled boats stop operating in the historical upper lake of Bhopal. The decision came after the petition of noted environmentalist Subhash Pandey, highlighting that a cruise vessel, this Lake Princess, has been permitted in the Bhoj wetland by the Madhya Pradesh government. The wetland is also a Ramsar site with international importance and has two lakes, Upper Lake and the Lower Lake or Chota Talab. The Upper Lake is spread over 31 kilometers and it's an important source of potable water for the city. Upper Lake also has a great importance when it comes to local climate, vegetation, groundwater depletion and groundwater contamination of the surrounding areas. It has more than 15 kind of fishes and several vulnerable species including turtles, amphibians and aquatic invertebrates. More than 2,500 migratory birds from across the world come here regularly to this wetland for breeding and dispersal of seeds, leading to maintenance of biodiversity along their routes. The tribunal also said that no permanent construction will be allowed within zone of influence of water bodies, wetlands, and if any permanent construction has been raised, it be demolished. Subhash C. Pandey has also alleged that serious damage and deterioration at the Bhoj wetland and other water bodies due to operation of motorized boats and cruise boats. He also said a small cruise vessel with passengers act as a floating colonies that pollute water bodies with sewage, wastewater and other contaminants. A mid-sized cruise vessel can consume 150 tons of fuel each day and dump toxic waste in water. Moreover, as per the Bhopal Master Plan of 2005, no recreational activities should be permitted in the water of Upper Lake since it is fundamentally used for drinking and recreational activities may adversely affect the quality of water. Still, Madhya Pradesh Tourism Board allowed this Lake Princess to operate here and this Upper Lake supplies water to the old city of Bhopal, around 12 lakh to around 12 lakh population. You can see, these people are here along with their families. We can see, the order by the civic body, mentioning the order of the NGT and the petitioner. सर, ये एनजीटी का कुछ ऑर्डर आया है जिसके बाद यहाँ पर ये मोटराइज्ड बोट्स या फिर क्रूज नहीं चलेंगे. आप लोगों के पास डिटेल है? आप अधिकृत नहीं है? अच्छा, पर बरसात पेपर पड़ा है, बस पेपर और कुछ नहीं. पर वैसे बरसात में मोटराइज्ड बोट चलती थी पहले? सभी बोटें चलते हैं, चलती है. और ये लेक प्रिंसेस कब से खड़ी है? आज लेक प्रिंसेस भी चल रही थी क्या? हाँ, पिछले साल तो नहीं वो आफ्टर रिनोवेशन चल रही थी. अच्छा, आप अपना पूरा नाम क्या लिखते हैं सर? लेफ्टिनेंट DS मिश्रा. Lieutenant DS Mishra. So Lieutenant DS Mishra is saying that he is not authorized to speak on this matter, but as you can see, lots of locals here. They came here at the Upper Lake in Bhopal. भाई साहब, आप भोपाल से ही हैं? जी. अच्छा, कहाँ से आए आप? हम भोपाल द्वारका नगर से. अब ये अदालत ने कहा है कि यहाँ पर जो मोटर बोट चलती थी ना, पैडल वाली चलेगी, मोटर बोट नहीं चलेंगी क्योंकि उससे प्रदूषण होता है. तो आप लोग इस फैसले से खुश हैं? आपको लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ थी जिससे आप परिवार के साथ आकर यहाँ पर एंजॉय करते थे? तो सर मेरे हिसाब से ये ठीक है. फिर पेडल बोट ठीक है, मोटर बोट नहीं चलनी चाहिए. मोटर बोट उससे प्रदूषण फैलता है जी. क्योंकि एनजीटी का ये भी कहना था कि बहुत सारे लोग इसका पानी पीते हैं बड़े झील का, तो प्रदूषित होगा तो उससे उनकी तबीयत खराब होगी. तो आप लोग इस बात को मानते हैं? जी सही. आपका शुभ नाम? अजीत साहू. अजीत जी, क्या सही बात है? मतलब बिल्कुल, पैदल वाला बोर्ड बहुत अच्छा है. पैदल वाला प्रदूषण होगी और आदमी भी स्वस्थ रहेंगे इससे. यहाँ पर कितनी मोटर बोट चलती है? मोटर बोट 10 मोटर बोट हैं. अच्छा. और एक लेक प्रिंसेस है, ये जो एक जलपरी है. जलपरी भी है. हाँ. तो ये जो अदालत ने आदेश दिया कि इससे प्रदूषण फैलता है, तो आप जैसे लोग जो यहाँ पर पैडल बोट या मोटर बोट के रोजगार से जुड़े हैं, क्या उनके रोजगार में कोई दिक्कत आएगी? रोजगार में कुछ दिक्कत नहीं. मेरा पानी मेन होता है, जल सबसे मेन है. अपना पानी जब मिलेगा ही नहीं तो ये क्या प्रगति कर सकेंगे? ओल्ड भोपाल को पूरा पानी देने वाला लेक है. तो जीतू जी, आप भी मानते हैं कि ये फैसला सही है? फैसला तो सही है, मगर इस रोड को अलग करना चाहिए. बैटरी चलाने चाहिए उनको, रोड को नहीं हो रहा था फिर. अच्छा. हाँ, और एनजीटी का कहना है तो फिर एनजीटी ने क्या है तो वो उसका रूल ही करा होगा. तो एनजीटी के फैसले से सहमत है क्योंकि सर इसका पानी मतलब पूरा भोपाल ही पीता है. मतलब पानी पीने के लिए जाता है, हम भी पीते हैं उसका पानी. आजकल आप देख रहे हैं पानी पीने से कितनी सारी बीमारियां, सबसे ज़्यादा टाइफाइड हो रहा है. व्यक्ति बीमार होता है क्योंकि गवर्नमेंट तो बोल देती है नर्मदा जी का पानी आ रहा है, मगर पानी तो यही पीता है हर बंदा.
सब झूठ बोला जाता है। ऐसे जो बड़े लेक प्रिंसेस खड़े रहते हैं वो भी कह रहे हैं कि इससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है ना, जब ये चलता है ना, एक तो धुआं आता है, डीजल गिरता है पानी में, जब इंजन स्टार्ट होता है डीजल गिरता है, और मोटर बोट जो चलते हैं इनके, उसमें सब में ही मतलब खेल विभाग के पास भी कई मोटर बोट है, मतलब ऐसा नहीं, इस बड़े तालाब के अंदर 30 से 40 मोटर बोट चलते हैं। अब क्या है कि सिर्फ नोटिस तो सिर्फ इनको दिया गया है, और बाकी खेल विभाग हुआ और जो भी खेल विभाग स्पोर्ट्स के लेके जो भी है सबके पास मोटर बोट है। पूरा पानी गंदा, मतलब सर आपको बता नहीं सकता, अगर कोई भी मोटर बोट जाता है ना, मतलब आप पानी के अंदर अलग ही देख सकते हैं। और हम जो बोट चलाते हैं ना, रोइंग बोट है हमारे पास, चप्पू वाली बोट है, उसमें हम पब्लिक को लेकर जाते हैं, ज़्यादातर उसी में घूमती है पब्लिक उसी में घूमती है। पैडल बोट रहता है तो क्या है कि मौसम में अभी ऐसा चल रहा है ना, तो बोट ना के बराबर चलाते हैं हम लोग। जब बिल्कुल मौसम अच्छा हो जाता है ना, तो पब्लिक खुद घूमती है, क्योंकि वो रोइंग बोट में हम लोग क्या है कि 12 सीटर बोट रहती है तो हम 8 लोग बिठाते हैं, वो पब्लिक घूमती है। बहुत इसमें इसलिए जाती है कि इसमें साउंड वगैरह, डीजे वगैरह और लाइटिंग वगैरह रहता है, तो जो नाइट में घुमाते हैं, तो पब्लिक को क्या अच्छा लगना चाहिए। और एनजीटी ने एक अच्छा फैसला ये भी करा है, जो तालाब किनारे जो पक्का निर्माण हुआ है ना, उसको भी तोड़ना चाहिए। एनजीटी को देखो, हम भी इसके लिए एनजीटी के साथ खड़ा है, हम भी काफी विरोध करा है। ये खेल विभाग वालों ने पूरा पक्का निर्माण करके रखा, इसकी जेटी की परमिशन देके, खेल विभाग वालों ने जेटी का परमिशन लेके, गवर्नमेंट से परमिशन लिया, भी सारा पक्का निर्माण हो गया जो पहले निर्माण है। सर इस तरफ ज्यादा हुआ, आप जाएंगे ना, वो म्यूजिकल फाउंटेन का भी पेपर में दिया है, आज के पेपर में आया, म्यूजिकल फाउंटेन भी वो पक्का निर्माण है। प्रशासन खुद ही पक्का निर्माण मतलब करता है। मेरे सर, मैं भी देखो, मैं भी एक समाज सेवक हूँ, मतलब इस चीज़ के लिए क्या है कि पर्यावरण के साथ हम खिलवाड़ करेंगे ना, तो आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो मतलब कहीं की नहीं रहेगी। इस चीज़ को आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ सर। आजकल के देखो, हमारे जो पिताजी थे, दादाजी थे, वो 80-80, 90-90 साल जीते थे। अब हम जैसी जनरेशन कितने साल जिएगी? 40-45 साल, क्योंकि उसको उस हिसाब से चीज़ ही नहीं मिल रही है, क्योंकि वहाँ पूरा पक्का निर्माण करके आपने कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का नगर निगम ने, जो क्रूज बोट बना रहे थे आप, बड़ा रेस्टोरेंट बना रहे थे, उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, नगर निगम ने दिया। आपने एनजीटी ने नगर निगम को बोला कि 1 करोड़ रुपए आप भरोगे। वो पार्क पे आग बना रहे थे आगे, पक्का एक रेस्टोरेंट, 5 मंजिला रेस्टोरेंट आप कैसे बना सकते हैं? वन विहार है, मानव संग्रहालय, मतलब प्रकृति के साथ खिलवाड़ प्रशासन नहीं कर रहा ना, इसमें कोई नहीं कर रहा, प्रशासन खुद ही कर रहा है, खुद ही करके और खुद ही उस पर कार्रवाई करता है। और जिनकी वजह से ये पाबंदी लगी है वो हैं सुविख्यात पर्यावरणविद सुभाष सी पांडे जी, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, यहाँ के मछुआरे तो बहुत खुश हैं इस फैसले से, लेकिन कुछ लोग दुखी भी हैं। अब जो लोग दुखी हैं वो उनके बारे में तो ये है कि जो सरकार से बंधे हुए हैं, जो जिनको कारण जिनको सरकार से नौकरी मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, उनका बुरा लगना जायज़ है। लेकिन मूल रूप से ये मछुआरे हैं गरीब, जो मेरे पास आए थे और वो कह रहे थे सर, जो है भोपाल में 5000 से ज़्यादा मछुआरे जो है रजिस्टर्ड हैं, वो कह रहे थे पढ़े लिखों को नौकरी नहीं मिल रही, हम लोग क्या करेंगे सर। ये मछलियों का तो उत्पादन कम हो गया है, मछलियों की साइज़ कम हो गई है, और जब ये लगातार इस तरह के जो मोटराइज्ड बोट चलेंगी तो उसके कारण मछलियों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, पानी जो पॉल्यूट हो रहा, तो बोले हम लोग को कोई पूछता नहीं है। तो धीरे धीरे इनमें बेरोजगारी बढ़ रही थी। इस पूरी घटनाक्रम से अनुराग जो है वो इतना बड़ा फायदा मिलेगा कि इन गरीबों को जो है वो सुध मिल जाएगी, मछलियों का उत्पादन बढ़ जाएगा, मछलियों की क्वालिटी बन जाएगी, और उसके कारण क्या होगा, ये पूरे रोजगार जो है इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा। विद कैमरा पर्सन रिजवान खान, अनुराग द्वारी फॉर एनडीटीवी।